Should I start? Okay, now see, Yeah, experimentally ma'am, it I has been. started recording. आप start कर दो. Okay, sir, thank you. So delta TB is directly proportional to M. M is nothing but molality. So just now I have told you what is the difference between molality and molarity. ठीक है? Molarity is mass by volume. Here you are taking mass and volume. Here it is mass by mass. Correct? Here you are taking solution. Here you are taking solvent. This is in liters. This is in kilograms. So please don't get confused. अगर आपने पूरे सोल्यूशन का यहाँ पे मास लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा. आपको मास किसका निकालना है? सॉल्वेंट का निकालना है. तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है? अब देखो आगे क्या होगा. I want to remove this proportionality sign. What I will do? Delta TB is equals to KB into M. So what we generally say KB is nothing but proportionality sign. ठीक है? Or it is called as proportionality constant. It is also called as मोलाल elevation constant. याद रखो मोलाल elevation constant. Or it is also called as ebullioscopic. Very, very important. Ebullioscopic constant. What is ebullioscopic? Any experiment which is done at a very higher temperature. That time it is called as ebullioscopic experiment. So that is why the name of the constant is ebullioscopic constant. ठीक है, वापस से मैं बोलती हूँ. डेल्टा TB is equals to TB minus TB naught. It's very simple because मैं आपको boiling point का सिखाऊंगी, freezing point का आप खुद करेंगे. It is exactly same. It is very simple. So यहाँ पे कैसे TB ज़्यादा हो गया? क्योंकि आपका solution का जो temperature था, it was very high compared to pure solvent. So delta TB is equals to TB minus TB naught. ये हो गया एक चीज. ठीक है? Next is experimentally it has been proved that delta TB is directly proportional to M. I want to remove this proportionality ka sign, so I will put over here KB. KB is called as proportionality constant or molal elevation constant or ebullioscopic constant. ठीक है? Now, can you take out the unit of this KB? Yes. So I will write down your unit of KB. Just rearrange it. KB is equals to delta TB by M. ये बहुत important है. इसके ऊपर नीट में भी बहुत questions आते हैं. डेल्टा टीबी मीन्स इट विल बी इन द केल्विन क्योंकि टेम्परेचर है. डिवाइडेड बाय मोलालिटी क्या है बच्चों? मोल्स पर किलोग्राम ना. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मोल्स पर किलोग्राम. अभी ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम पर मोल. आया समझ में? दिस इज द यूनिट फॉर केबी. इज इट वेरी क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन? Okay, now there is one question. Why we are not using molarity? Why we are using molality? Because as we know that this molarity is temperature dependent. ठीक है? Anything which is related with the volume is always temperature dependent. है ना? अगर मैंने इसका temperature change किया तो volume भी change हो जाएगा. Everything will get changed. But in the case of molality, you're talking about mass. Mass never changes with the temperature. That is why we are dealing with the molality rather than molarity. Is it clear? So this much part is clear for everyone. Derivation 1 ही अब तक. I'm just asking, is it very clear? चलो अभी हम लोग Yes, ma'am. जाएंगे next part पे. Yes. Okay. Just give me a second. Now the next part is we have to compare and we have to equate our molar mass of solute because हम लोगों ने हमेशा क्या बोला है? All the colligative properties are nothing but these are dealing with the number of solute particles, correct? So what I will do now, we have to do your next topic, that is your molar mass of solute from boiling point elevation. अभी इसका ना एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सब टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको जब मेरा लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करूंगी ना तब दिखा दूंगी. अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो आई कैन नॉट शो इट टू यू. Chalo, now what we will do now, we know that delta TB is equals to KB into M. All are agreed with this? This is my suppose equation number 1. ठीक है? अच्छा. Now I'll write M is equals to
number of moles of solute, it is dissolved in kilograms of solvent. So I can write down number of moles of solute matlab N2. Yes or no? N is number of moles. Since I am writing 2, it is number of moles of solute. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? मास अपॉन मोलार मास मतलब W2 अपॉन M2. इतना समझा सबको? Yes or no? ठीक है, देखो डेल्टा Yes, टीबी ma'am. इज इक्वल टू केबी इंटू एम. अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ये वाला निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. बराबर. अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोला ना मैंने बच्चों, तो सोल्यूट के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं? नंबर 2. सो N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2. ठीक है, and then I'm going to write down here this is present in kilograms. अभी किलोग्राम मतलब कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम. बराबर. चलो अभी हम क्या करेंगे? मोलालिटी में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड सॉल्वेंट बोला है तो क्या हो जाएगा? W1. गेटिंग माय पॉइंट? किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1. अभी ये सब चीजों को इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो M क्या हो जाएगा? देखो मास अपॉन मोलार मास मतलब W2 अपॉन M2. ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? 1000 ऊपर जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू W1. ये समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो. ये स्टेप समझा सबको? व्हाट आई डिड, मैंने ये सिर्फ जो मोलालिटी का फॉर्मूला था उसको ऐसे फॉर्म में लिखा है. देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मास अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास इन किलोग्राम. तो इट विल बी इन किलोग्राम. तो हम लोग क्या लिखेंगे? W1 बिकॉज वो सॉल्वेंट है ना बच्चों. ये देखो दिस इज सॉल्वेंट, सो आई विल राइट डाउन W1. बट आई डोंट वांट दिस इन द किलोग्राम क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द ग्राम्स. सो डायरेक्टली वी विल कन्वर्ट इट टू द ग्राम्स बाय मल्टीप्लाइंग दिस विथ 1000. ये समझा सबको? Is it very clear? Just give me a quick yes into the chat box if it is very clear. सबको समझ आया ये स्टेप? किसको नहीं समझा प्लीज आस्क. एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके ठीक है चलो. हाँ, अब हम क्या करेंगे? दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है बच्चों, समझ गया? ठीक है चलो. अब ये सब्स्टिट्यूटिंग 2 into 1, व्हाट यू विल गेट? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी. और अब क्या लिखेंगे वहां पे? मल्टीप्लाइड बाय 1000 into W2 divided by M2 into W1. So can I calculate molar mass of the solute? Yes. M2 is equals to, खाली rearrange करो, ये इधर जाएगा आ जाएगा. So KB into 1000 into W2 divided by delta TB into W1. ये हो गया आपका आज का इक्वेशन. Is it very clear? Is it very easy? वापस से मैं बताती हूँ. देखो what we have written here. We said that we can equate molar mass of the solute with the boiling point elevation. ठीक है? From the definition of boiling point elevation, we know that delta TB is equals to KB into M. What is M? Molality. Molality का formula क्या है? Number of moles of solute present in kilograms of solvent. Number of moles of solute कैसे निकालेंगे? Mass upon molar mass. आपको चाहिए तो लिखो. Where N2 is equals to number of moles of solute, W2 and M2 are mass and molar mass of solute respectively. ऐसे लिखना है तो लिखो. ठीक है? Then solvent लिखा है मतलब W1. W1 is mass of solvent. ठीक है? Why I have multiplied by 1000? Because I want to convert kilograms into grams. So I will multiply this by 1000. ठीक है? अब देखो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब W2 अपॉन M. ये लिख दिया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास प्रेजेंट इन द किलोग्राम मतलब W1 और मल्टीप्लाई 1000 किया मतलब वो ग्राम्स में हो गया. अभी M का वैल्यू मिल गया. ये M का वैल्यू मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है? And then after rearranging this, I will get the value for M2. So by using this equation, we can calculate the molar mass of your solute. Clear? Any question in boiling point elevation? ठीक है, अभी सब लोग अपने बुक ओपन करो. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम लोग थोड़ी देर में करेंगे. ठीक है चलो, सबसे पहले हेडिंग लिखो बच्चों. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. राइट डाउन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. फटाफट लिखो प्लीज. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एक ग्राफ है टेक्स्ट बुक में दैट आई विल शो यू लेटर ऑन. कुछ है नहीं उसमें, इट इज वेरी सिंपल. खाली बताया
why it is delta, why TB is greater than TB not. बस लिखा boiling point elevation. Definition of boiling point. What is definition of boiling point? Can anyone define? लिखा है इधर पे. When vapor pressure of the liquid becomes exactly equal to atmospheric pressure, it is called as boiling point of that liquid. When vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure, when vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure, it is called as boiling point of the liquid. Boiling point of the liquid. Then write down TB is greater than T naught B. Hello? Yes? Yes, Rishi? Hello? ऋषि आपको कुछ पूछना है? ठीक है, चलो. Now write down TB is greater than TB naught. लिखो where TB is equals to boiling point of solution, TB naught is equals to boiling point of pure solvent. अच्छा, which definition? Okay, definition. When vapor pressure of liquid is exactly equal to atmospheric pressure, when vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, it is called as boiling point of the liquid. It is called as boiling point of the liquid. Likha? Then write down TB is greater than TB naught. Please write it, हाँ, क्योंकि आपको next derivation इसको refer करके खुद ही करना है. मैं कुछ help नहीं करने वाली हूँ. TB is greater than TB naught, where ये लिखो TB is equals to boiling point of solution, TB naught is equals to boiling point of pure solvent. आराम से समझ के लिखो. It is very simple. ये 4 marks के लिए आता है. Done? Write down then boiling point elevation that is delta TB can be written as boiling point elevation that is delta TB can be written as TB minus TB naught. और इसको ऐसे ब्रैकेट में डालो, बॉक्स में डालो. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, लिखो. नेक्स्ट पॉइंट. रेडी एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. ऋषि प्लीज म्यूट योरसेल्फ. जब जरूरत होगी तभी अनम्यूट करो. ठीक है, चलो. राइट डाउन. Experimentally, it has been proved that लिखो delta TB is directly proportional to M, where M is equals to molality. यहाँ से सबसे important part शुरू होता है. Delta TB is directly proportional to M. M is equals to molality. Therefore, delta TB is equals to KB into M. अभी K और B ऐसे बाजू में मत लिखना. K and at the base you write down B because B stands for boiling point. Write down where KB is equals to proportionality constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant. Or ebullioscopic constant. यहाँ तक clear? Any doubts? Any questions till now? Next. Unit of KB. हाँ बोलो.
मुझे समझ रहा नहीं आपने क्या बोला सिद्धेश, एक बार वापस से रिपीट। हाँ, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब ebullioscopic constant मतलब any experiment which is done at a very higher temperature, it is called as ebullioscopy। वो एक मेथड है। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे क्रायोस्कोपी, ठीक है, बताती हूँ बाद में। इट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी। तो क्रायोस्कोपिक सर्जरीज भी होती है। इट इज डन एट अ वेरी वेरी लोअर टेम्परेचर इन द फ्रीजिंग पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी। So ebullioscopy is also a technique which is done at a very higher temperature, not at the normal room temperature, but at a very higher temperature. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो टेम्परेचर था उसको हायर ही रखा ना, so because of that we are using the term ebullioscopic constant. Okay Siddesh, is it clear now? Okay, ठीक है, चलो इतना हो गया। यूनिट ऑफ केबी, चलो ये लिखो फटाफट। केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी बाय एम, के बाय मोल पर किलोग्राम, दैट्स व्हाई यूनिट विल बी केल्विन किलोग्राम्स पर मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भूलना ही नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Kelvin kilogram per mole, capital K, small g, and then per mole. ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट खत्म हुआ आपका। If you want to ask anything, please feel free to done. Okay, चलो अभी next page पे heading लिखो, molar mass of solute from boiling point elevation. Molar mass of solute from boiling point elevation. लिखो Kb, delta Tb is equals to Kb into M. That is our equation number 1. Delta Tb is equals to Kb into M. That is our equation number 1. अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो Kb is ebullioscopic constant, M is molarity, delta Tb is boiling point elevation. ठीक है, अगर लिखना है तो लिखो, write down, but M is equals to number of moles of solute divided by kilograms of solvent. But number of moles of solute divided by kilograms of solvent. Therefore, ये clear है ना बच्चों के लिखना है, N2 क्या है, W2 क्या है, M2 क्या है? Do you want to write down this or is it fine? Hello? N2 मतलब क्या होगा? N2 का मतलब क्या है? Okay, ठीक है, तो ठीक है, तो लिखो N2 is equals to W2 upon M2. N2 is equals to W2 upon M2, where N2 is equals to number of moles of solute, where N2 is equals to number of moles of solute. W2 क्या रहेगा? What is W2? Mass of solute. W2 is equals to mass of solute. M2 is equals to molar mass of solute. सब 2 है ना, मतलब it is for solute. W2 is equals to mass of solute. M2 is equals to molar mass of solute. W1, what will be W1 then? अगर W2 mass of solute था तो W1 क्या रहेगा? Mass of solvent. Very good. W1 is equals to mass of solvent. ठीक है? Therefore, M is equals to, समझा अभी ये कैसे किया? Number of moles of solute divided by solvent. तो number of moles of solute divided by solvent. और 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया। तो ये लिख लो अभी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आराम से समझ के करो, क्योंकि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट मैं लिखूंगी लेकिन मैं पेज छुपा दूंगी, आपको खुद से सॉल्व करना है।
then substituting 2 into 1, substituting 2 into 1, उसके बाद ये लिखो और फिर नीचे वाला लिखो, कॉपी कर लो इतना, and mark this formula as very very important. So many questions will be asked on this. Ma'am. What is KB? Molar elevation constant. W2. अब वो ना आपको ऐसे बताएंगे नहीं, they will, हाँ, yes, yes ऋषि, what happened ऋषि, आपको कुछ पूछना है? अननेसेसरी प्लीज अनम्यूट मत करिए, आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, तो अगर देखो एग्जाम में कैसे दिया, सपोज दे विल टेल यू कि 200 ग्राम्स ऑफ क्या लिखूं मैं अभी, इथेनॉल, हाँ एक मिनट ना, मेरा पेन खत्म हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, they will give you 200 grams. सभी को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? Is my voice? हाँ. No. Rishi, please check your connection. 200 grams of ethanol dissolved in 500 grams of water. समझो ऐसे दिया, ठीक है? And suppose they will give some value of Kb. They will give you some value for delta Tb something, ठीक है? तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हो. तो they will not tell you कि W2 क्या है. W2 मतलब mass of solute. अब इन दोनों में से solute कौन सा हुआ? ये वाला, कम वाला. W1 मतलब mass of solvent, तो this will be, समझा? M2 निकालना है तो mass upon molar mass करके निकाल सकते हैं. Then after that, ऐसे करके आपको, समझा? तो वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि this is W2, this is W1, this is M2. 1 दिखा तो for solvent, 2 दिखा तो for solute. ठीक है बच्चों? I hope elevation in the boiling point is very very clear for you all. Yes, If you ma'am. want Yes, to ma'am. ask anything, okay, ठीक है. Should I proceed now for depression in the freezing point? एकदम simple है वो भी, कुछ ऐसा difficult नहीं है, ठीक है? चलो. Now please put your pens down. We will go for the next part, which is also very simple. और ये होने के बाद हम लोग थोड़े एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे. तो अगर आपके पास लॉगबुक है तो प्लीज लेकर बैठो. इट विल बी इजियर टू सॉल्व. नहीं है तो अभी ले लो. चलो, नाउ वी विल डू, अभी आप लोग मुझे पढ़ाना, ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स इट विल बी लोअर. देखो फ्रीजिंग पॉइंट ही अपने को क्या बता देता है कि व्हाट इज द डिप्रेशन, मीन्स इट इज गोइंग टू बी डिप्रेस, इट इज गोइंग टू बी लोअर्ड, करेक्ट? so it is called freezing point depression. ठीक है? What is the definition of freezing point? When your liquid and solid, these two phases are present in the equilibrium with each other. मतलब solid भी है और liquid भी है. अभी आप ice को imagine करो ना, तो solid और liquid दोनों phases present है in the equilibrium. That time it is called as freezing point. कोई चीज freeze हो गई मतलब liquid से solid में convert हो गई, ठीक है? अब मुझे ये बताओ बच्चों कि जब हम किसी चीज को freeze करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? कम करते हैं. करेक्ट, कम करते हैं, बराबर. अभी आप देखो वापस से सेम चीज इमेजिन करो कि आई हैव अ बीकर, इन दिस आई विल टेक प्योर, यस करेक्ट, आई विल टेक प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? वापस से मैं इमेजिन कर रही हूँ कि दैट प्योर सॉल्वेंट इज वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अभी मैंने क्या लिखा, डेल्टा TF नॉट, it is a pure solvent. I will consider freezing point of water is 0 degree Celsius. देखो आप खुद से बात करो कि वाटर कितने पे फ्रीज हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया, ठीक है? तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. उसको मैंने लिख दिया
TF not stands for pure solvent. Clear? अब मैंने क्या किया बच्चों, from external sources I am going to add any solute. अब ये क्या बन गया, solution. अब मुझे बताओ कि जब मैंने solute ऐड किया तो ये टेम्परेचर और कम होगा कि और ज्यादा हो जाएगा, क्या लगता है आपको? इसको What will सॉल्यूट happen पे to the डिपेंड temperature? होगा ना। नहीं, पर आप सल्यूट ऐड कर रहे हो यहाँ पर, तो व्हेन यू गोइंग टू ऐड द सल्यूट, आपको सल्यूट को भी ठंडा करना है, तो टेम्परेचर और नीचे चला जाएगा ना, और माइनस में चला जाएगा, समझ रहे हो? इट विल बी ऑलवेज लोअर्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. जैसे हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट में सल्यूट डाला तो व्हाट हैज हैपेंड, टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि वो सॉल्वेंट खुद तो बॉइल हुआ, उस सल्यूट को बॉइल करने के लिए और टेम्परेचर लगा, तो इट हैज इंक्रीज्ड. यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट विल फ्रीज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जो आपने सल्यूट डाला उसको भी ठंडा करने के लिए और नीचे जाना पड़ा, दैट इज व्हाई योर टेम्परेचर विल लोवर्ड. डेल्टा TF इज द, क्या हो गया, freezing point of your solution. So now can I say मैम फिर से TF बताओ is ना. lesser, yes, TF is lesser than TF not C. What I said over here, एकदम खाली देखो, ये ध्यान दो कि डिप्रेशन मतलब उसको कम ही होना है. कैसे कम होगा? I will say I have a beaker. अभी आप ये इमेजिन करो कि उस बीकर में पानी है, पानी इज अ प्योर सॉल्वेंट, तो उसका टेम्परेचर कितना था, TF naught, that is 0 degree Celsius. So your water will freeze at 0 degree Celsius. ठीक है? अब मैंने क्या किया, उसके अंदर एक और थोड़ा सा सल्यूट डाल दिया, और वो सल्यूट को भी मुझे ठंडा करना है और फ्रीज करना है, तो वाटर तो 0 पे हो गया. अभी उसके अंदर मैंने सल्यूट डाला तो वो और टेम्परेचर नीचे जाएगा ना, माइनस में जाएगा, तो आपका जो TF आएगा वो हमेशा इससे कम होगा. समझ रहे हो? क्योंकि सोल्यूशन में आपने सल्यूट भी डाला है, तो सल्यूट मतलब सोल्यूशन बन गया. तो टू फ्रीज द सोल्यूशन वी रिक्वायर स्टिल लेसर टेम्परेचर. देखो हम लोग कैसे एसी में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ बोलते हैं तब गर्मी होती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो सर्दी होती है. समझ रहे हैं? तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू आर टेकिंग योर सोल्यूशन, its temperature has to be lowered than the pure solvent, then only it will freeze. अभी समझा मैंने क्या बोला? यस मिस. सबको समझ आया? तो कैसे याद रखने का, देखो डेल्टा टीबी में क्या था, सोल्यूशन डाला तो टीबी माइनस टीबी नॉट था ना, यहाँ पे उल्टा करने का. तो TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी ऑलवेज लेसर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, आई विल राइट डाउन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF. अभी ये उल्टा हो गया, ठीक है? देन आई विल राइट डाउन वेयर, आपस से एकदम सेम है सब कुछ, TF नॉट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, बोलो क्या है, प्योर सॉल्वेंट, बराबर. देन TF इज नथिंग बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेल्टा TF क्या था, इट इज नथिंग बट फ्रीजिंग freezing point depression. पॉइंट डिप्रेशन. यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है? Any questions till now? Please ask if you have any question, any query. You can unmute yourself. Better not. जब वो खाली yes no लिखना रहेगा ना तभी चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि वो तुम लोग चैट बॉक्स में लिखते हो ना तो मुझे पीछे जाना पड़ता है. ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये TF क्यों कम है और TF नॉट क्यों ज्यादा है? हमेशा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा सॉल्वेंट से, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, तो ठंडा करने के लिए और माइनस में जाऊंगी मैं. ठीक है? और ये ऐसा हो गया. ठीक है, चलो अब हम क्या यस करेंगे, मैम. वापस से सेम थिंग. सब सेम है, सब सेम, कुछ भी अलग नहीं है. Experimentally it has been proved that delta TF is directly proportional to M, where M is called as molality. So delta TF is equals to, अब मैं क्या लिखूं KB की जगह पर, KF into M. समझ रहे? Where what is your KF बच्चों, it is proportionality constant, और अभी क्या लिखेंगे, वहां पे क्या लिखा था, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या लिखूं, मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. समझा? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट था ना, तो यहाँ पे क्या था, मोलार फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और वहां पे क्या था, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक
constant. What is cryoscopy? अभी मैंने बोला it is a technique or a method which is done in which experiments are done at a very lower temperature, very lower temperature. तो उस टेक्निक को बोलते हैं क्रायोस्कोपी. That is why it is called as cryoscopic constant. Any doubt till now? यहाँ तक सबको समझ आ गया? अभी अपना पुराना सब कुछ सेम है. Will you be able to write down that? It is very simple and similar. आपस में सेम लिखने का. Molality is equals to N2 upon W1. Number of moles of solute upon W1 in kilogram. मैंने शॉर्ट में लिखा. समझा क्या क्या किया मैंने? Yes, ma'am. सबको समझा? Number of moles of solute upon solvent. mass of solvent in kilogram. फिर N2 मुझे पता है क्या होता है? W2 upon M2. और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलालिटी क्या बन गया बच्चों? मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 इनटू सेम एकदम सेम W2 अपॉन M2 इनटू W1. इसको ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ कि क्या है. विल यू बी एबल टू डू दिस? समझा क्या करना है? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूटिंग 2 इनटू 1. समझा? Yes, समझा ma'am. सबको? और उसके बाद M2 को खाली रीअरेंज करना है. Is it very clear? It is exactly similar to the boiling point elevation. किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछो. If you want to repeat me, I can repeat it also. Don't worry. सब सेम है. खाली TB की जगह पर TF लिखना है, KB की जगह पर KF लिखना है. बाकी सब सेम है. Clear everyone? Please give me a quick yes into the chat box if it is very clear to you all. Quick yes. ठीक है, मतलब सबको समझ आ गया अच्छे से. ठीक है, ओके, वेरी गुड. चलो अभी सबसे पहले हेडिंग लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. मैं आपको आधा करके छोड़ देती हूँ, फिर आधा तुम लोग करो. हाँ, क्या बोला? किसने क्या लिखा है? एक मिनट मैम. W2 बाय kg होगा ना? W2 बाय kg मतलब कन्हैया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. आपको क्या पूछना है? मैम वो नीचे वाला पेज दिखाओ ना. कौन सा वाला? ये? हाँ, ये जो W1 इंटू kg नहीं होना चाहिए ना. हाँ, नहीं होगा, W1 इसलिए हम लोग अपॉन उसको kg 1000 से होगा. मल्टीप्लाई करेंगे ना. W1 अपॉन kg नहीं है बाबा. मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना. तो सॉल्वेंट को मैंने W1 लिखा क्योंकि उसका मास है और दैट इज इन kg, तो वो kg उसका यूनिट लिखा है. समझा अभी? ओके मैम. ओके. हाँ, ओके. ठीक है, पहले लिखो बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. अभी फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन तुम लोग टेक्स्ट बुक में से लिखोगे क्या? क्योंकि मेरे पास है ना एक्चुअली अभी ये नहीं है. ओके मिस्टर. हाँ प्लीज. हाँ, डेफिनेशन जरा टेक्स्ट बुक में से लिखो. इसका एक ग्राफ है, वो भी बहुत सिंपल है. अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है बच्चों, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती वो ग्राफ. नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी मैं. टेक्स्ट बुक में ठीक है, हाँ टेक्स्ट बुक में है. डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में से लिख लो जरा प्लीज. टेक्स्ट बुक लिखती हूँ उधर. हाँ, अभी लिखो. रेडी? TF is lesser than TF not. एकदम सेम जैसे पहले लिखा था वैसे ही. TF is lesser than TF not, therefore TF is equals to TF not minus TF. और ये तीनों पॉइंट लिखो. Where TF not is equals to freezing point of pure solvent, TF is equals to freezing point of solution, delta TF is equals to freezing point depression. इतना हो जाएगा तो चैट बॉक्स में डन लिखो. आगे का भी लिख सकते हो. Experimentally it has been proved that delta TF is directly proportional to M, so delta TF is equals to KF into M. इतना लिख सकते हो if you want. इतना हो जाएगा तो let me know. ठीक है, तब तक मैं खुद को म्यूट करती हूँ, आप लोग लिख लो. कुछ डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. Okay, I think most of the people have completed.
डन डन तो आ रहा है मुझे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केएफ? केएफ का यूनिट क्या रहेगा? कोई बता सकता है? केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ बाय एम, सेम रहेगा ना? यस और नो? हाँ केएफ हम्म, और केबी का यूनिट सेम ही रहेगा ना बच्चों, क्योंकि डेल्टा यस टीएफ अपॉन एम, डेल्टा टीएफ मतलब केल्विन, इसका मतलब क्या है? मोल पर किलोग्राम, तो सेम रहेगा ना यूनिट, केल्विन किलोग्राम्स पर मोल। याद रखना, ये बिल्कुल भूलना नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। एमसीक्यू में तो तुमको आएगा ही 110%। यहाँ तक हो गया बच्चों? के एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, ये सब। और पहले वाला कॉपी करके लिखो, लिखोगे तुम लोग? कंप्लीट करोगे M2 तक? हाँ, मैं लिख देती हूँ फाइनल इक्वेशन, लिखूं? ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझे पूछो, मैं फाइनल वाला लिखती हूँ, ठीक है? M2 इज इक्वल टू, ये आना चाहिए आपका आंसर, 1000 इंटू के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू W1। ये सबका आंसर आना चाहिए, जिसका नहीं आएगा वो मुझे पूछो। कुछ है नहीं, खाली यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। पहले वाला रिफर करो और लिखो, हो जाएगा तो डन लिखो। फिर मैं आगे एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेती हूँ। न्यूमेरिकल्स करना है क्या आज? करते हैं ना, थोड़े दो चार कर लेते हैं। टेक्स्ट के पीछे के ही ले लेती हूँ, ठीक है? लॉग बुक्स लेकिन ले लो, जरा लगेगा अपने को लॉग बुक्स। दो तो हो सकते हैं आराम से। ओ सॉरी। अच्छा, आई थिंक, हाँ ठीक है, 2 3 वी कैन डू, यस। फिनिश बच्चों? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अभी अपना एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा है, विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वो भी काफी लंबा है, तो पहले हम लोग इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है वो सब कर लेंगे, एंड एंड में आई विल टेक ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, ठीक है? टेक्स्ट बुक प्लीज कीप ऑन रीडिंग, each and every line you are supposed to read, because we can teach you only the concept। उस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है वो सिखा सकते हैं, word to word we cannot teach you बच्चों। So please keep on reading, keep on asking the questions in every lecture। आपने जो भी पढ़ाई किया है, कुछ नहीं समझ रहा है, you can ask the question। What is written in the line N2? ये वाला W2 upon M2, सॉरी मेरा W थोड़ा गंदा हो गया। It is W2 upon M2, mass upon molar mass of solute। लिखा ना पहले? N2 is number of moles of solute, W2 is mass of solute, M2 is molar mass of solute, ठीक है? Therefore M will become 1000 into W2 upon M2 upon W1। इसलिए M2 को खाली रीअरेंज करके ये इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना ये वाली इक्वेशन में, तो यू विल गेट दिस आंसर। आया क्या सबका आंसर? और यस शुड मैम। आई राइट इट? ओके, सबको मिला? सबको? ऑल 40 स्टूडेंट्स? 40 नहीं, सॉरी, मुझे और सर को छोड़ा तो 39। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली। नहीं समझेगा तो पूछो। ओके डन, चलो। यस ओके ओके, रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स? ठीक है, चलो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पेज टर्न कर दूँ। पहले वाला भी याद रखो, डेफिनेशन इसका वेपर प्रेशर का क्या था, फॉर्मूला वेपर प्रेशर का कौन बताएगा? डेल्टा, क्या था वो? डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू, व्हाट वाज द फॉर्मूला? वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? लिखा है ना? Show that it is a colligative property, we have seen that। What is the formula for delta P? अरे भूल गए तुम लोग? P1 X2 not into minus P1 P1 not। हाँ बराबर। एंड रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, याद है कि भूल गए? डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1।
एंड रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट, भूलना नहीं, और ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, किसी को नहीं आवाज आएगी तो प्लीज बता देना। वेपर, अच्छा किसी ने क्या लिखा है मैम, वेयर डज द m गोज व्हेन वी सब्स्टिट्यूट? अरे बच्चा ये देखो क्वेश्चन तुम्हारा, ये जो था ना, ये जो वैल्यू आपने निकाला, ये m का ही तो वैल्यू था ना, तो m की जगह पर आपने ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो m किधर से आएगा? समझा क्या? अंडरस्टूड? किसने पूछा था क्वेश्चन? ऋषि, डिड यू गेट दैट? m का ही तो मैंने वैल्यू निकाला ना, m की जगह पर ये वैल्यू मैंने इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो m तो चला ही जाएगा, m विल नॉट रिमेन इन दियर, समझा? अंडरस्टूड? तो ये m निकाल दिया मैंने, इसकी जगह पर ये पूरा रख दिया, तो m नहीं दिखेगा उसमें। क्लियर? जनरल साइंस। ओके ठीक है, चलो जनरल साइंस। ठीक है, ठीक है, चलो कन्हैया अपना माइक म्यूट करो। तुम लोग को बोलना क्यों पड़ता है भाई, हो गया काम तो माइक म्यूट करने का। चलो देखो क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at the vapor pressure of water at 20 degrees Celsius, vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17 mm of mercury। ये आपके टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं पीछे के। vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17 mm of mercury, full stop। What is the vapor pressure of solution? What is the vapor pressure of solution containing, what is the vapor pressure of solution containing 2.8 grams of urea, 2.8 grams of urea in 50 grams of water, in 50 grams of water। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेडी एवरीवन? गिवन, देयर आर मार्क्स फॉर गिवन, सो ऑलवेज राइट डाउन दैट। क्या दिया हुआ है देखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अभी ना उन्होंने ये नहीं बताया अपना फॉर्मूला क्या है वेपर प्रेशर का, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा पी बाय P1 नॉट, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, है ना। अब उन लोगों ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये प्योर सॉल्वेंट था कि सोल्यूशन था, बट इट इज अंडरस्टूड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर, तो वाटर तो प्योर सॉल्वेंट ही रहेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? वाटर विल बी प्योर सॉल्वेंट ओनली, so you have to write down here P1 नॉट, वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया है बच्चों? 17 mm of mercury। अपने को क्या ढूंढने के लिए बोला है? What is P1? ठीक है, What is P1? That is my question. Okay. अभी देखो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, so what we have to do over here, और क्या दिया हुआ यहाँ पे? Mass of urea. Mass of urea is how much? 2.8 grams। अब मुझे बताओ यूरिया 2.8 ग्राम्स है एंड मास ऑफ वाटर इज 50 ग्राम्स। इन दोनों में से सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? Which one is Solute solute is and which urea. one? Very good. So should I Solute is write down urea. W2 here? All are agreed? And I will write down W1 here. ये समझ आया? Yes, It ma'am. is for solute. Mass of solute. This is mass of solvent. बराबर? चलो अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग?
एक्स निकालेंगे ना, क्योंकि मैम देखो ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2, है ना, देन ओनली आई कैन कैलकुलेट दिस P1 बराबर. I have to calculate this. So first of all, I have to calculate this x2. What is x2? X2 is nothing but number of moles of mole fraction of solute. So it is n2 upon n1 plus n2. आप लोग को समझ रहे हैं what we are doing exactly? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. देखो क्या लिखा मैंने, वापस से देखो. डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2. मुझे निकालना क्या है, P1 निकालना है. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मेरा फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट दैट इज इक्वल टू x2. तो मुझे P1 निकालने के लिए पहले x2 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, n2 अपॉन n1. So can I calculate n1 and n2? चलो कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे. How will you calculate? n1 is equals to mass upon molar mass, मतलब W1 upon M1, and n2 is equals to W2 upon M2. What is the mass of solvent? 50 grams. Molar mass क्या आएगा? What is the molar mass of water? 18. Very good, perfect. Ma'am, 18. Very good. कैसे आया? Because water is H2O. So 2 O is plus 6. 16 that is 18. Correct. Very good. इससे आपको मिलेगा n1. ये सॉल्व करो पहले, बाद में n2 निकालो. n2 कैसे निकालेंगे, W2 अपॉन M2. W2 कितना है, 2.8 डिवाइडेड बाय M2 नहीं पता है मुझे, but do I know the यूरिया का formula for urea? फॉर्मूला. Yes, very good, correct. NH2CO NH2. मैं नंबर्स देती हूँ, सॉल्व करो. नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, क्या रह गया, और कार्बन 12. इसको कैलकुलेट करो, इधर सब्स्टिट्यूट करो, n1 n2 निकालो, और पहले x2 निकालने का काम करो. इतना करोगे, ठीक है? समझा सबको? what we have to do now, we have to calculate n1 and n2 to substitute this into this formula. So n1 is mass upon molar mass, n2 is also mass upon molar mass. Mass of the solvent is given 50 grams. Since it's a water, its molecular mass is 18 grams. ठीक है? Mass of solute, that is urea, is 2.8 grams, but इसका molar mass नहीं दिया हुआ है, तो by using this formula NH2CO NH2 you can calculate the molar mass of urea. इधर सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके मुझे पहले x2 का आंसर बोलो. समझा सबको? yes or no? अरे बोलो भाई. यस अगर Yes, आपके ma'am. पास हाँ, अगर लॉग बुक है तो लॉग बुक से सॉल्व करो. अभी देखो मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो. प्लीज ट्राई नॉट टू यूज कैलकुलेटर्स, यूज लॉग बुक्स. ये हो जाएगा तो मुझे आंसर बोलो. ठीक है, मैं म्यूट
व्हाट इज द आंसर फॉर x2? हो गया सॉल्व? ये कर रहे हैं? हेलो, guess what is the answer for x2? सॉल्व कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना सॉल्व? ये रहा यूरिया का फॉर्मूला। कितना आया मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया? कितना आया? दिवेश कितना आया यूरिया का मॉलिक्यूलर मास? 58. नहीं रे बच्चा, 60 आएगा। 60। देखो 14 + 2 16, ये 16 32 हो गया। हाँ बराबर। 12 and 16 मॉलिक्यूलर 60 मास आएगा ना? 60 आया। हाँ बराबर है 60। अब इन दोनों को डिवाइड करके इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, x2 आएगा। फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा सा में। ये थोड़ा फास्ट फास्ट करो, हो जाएगा तो डन लिखो। x2 का वैल्यू लिखो मेरे को चैट बॉक्स में। लॉग बुक आता है ना अभी सबको? यस बच्चों, व्हाट इज द आंसर फॉर x2? तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे बाबा, ऐसे तो पूरा 1 घंटा चला जाएगा मेरा। कितना आया? 0.01। नहीं, x2 का बता रहे हो क्या आंसर? एक मिनट में सबके आंसर्स लिखती हूँ, रुको। चेक करो तुम लोग। हाँ कुछ लोगों का राइट है। वेट, अपने को मिलेगा n1। पहले n1 लिखती हूँ, ठीक है? n1 यू विल गेट 2.777। ये सबको आया। n2 वी विल गेट n2 0.0466। n1 n2। x2 का आंसर आएगा 0.01649।
ये आया क्या सबको? ये मैंने लॉग से सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। 0.01649 ये आया। ये आया क्या? N1 N2 ये बोलो। हाँ जो ये जीरो सिद्धेश का बराबर है 0.0166 वो दैट इज ओके। बाकी लोगों ने किधर तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया। तुम लोग कैलसी पे कर रहे हो बच्चों, इसलिए तुम लोग का आंसर 0.014 आ रहा है। लॉग बुक से करो 0.01664 समथिंग। चलो ठीक है लिख लो, अभी बाद में करना। अभी क्या निकालना है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट दैट इज इक्वल्स टू x2। ठीक है। व्हाट इज P1? 17 माइनस P1 अपॉन 17 इक्वल टू 0.01649 आएगा। करने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 17 माइनस P1 एक मिनट माइनस P1 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.01649। अभी मुझे लगता है सब लोग P1 का वैल्यू तो काफी इजीली निकाल सकते हैं, मैथ सभी को आता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, P1 इधर ही रखो, इसको इधर लेके जाओ, 17 में से माइनस करके आंसर बोलो। क्लियर? इज इट वेरी क्लियर टू यू ऑल? से यस और नो। हेलो सबको समझा व्हाट वी आर डूइंग? ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, इसको 17 को इससे मल्टीप्लाई करो। ओके और फिर कैसे करेंगे? P1 को इधर ले आना तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 17 माइनस ये जो नंबर होगा इधर लिखो, आंसर आ जाएगा। फटाफट अभी बताओ आंसर। चलो सब बता दिया मैंने। फाइनल आंसर, हाँ बराबर करेक्ट ऋषि, करेक्ट आंसर। ऋषि को मिल गया आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके यस एवरीवन गॉट करेक्ट आंसर 16.71 परफेक्ट आंसर। सबको आ गया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रेडी? ओके राइट डाउन अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड। एक मिनट मैं पेज चेंज करती हूँ। A solution of citric acid. What is the formula for citric acid? Where is it present? Citric acid. Citric acid is present in? Lemons. Correct. All citrus fruit contain citric acid.
Okay, write down a solution of citric acid. Formula लिखो C6H8O7. A solution of citric acid C6H8O7 in 50 grams of acetic acid. In 50 grams of acetic acid has boiling point elevation of 1.76 Kelvin. 1.76 Kelvin. If Kb for acetic acid is Kb for acetic acid कैसे दिया? Citric acid ही होना चाहिए ना? Citric acid ही रहेगा, शायद वो printing mistake होगा. If Kb for citric acid is 3.07 Kelvin kilograms per mole, what is the molality of the solution? What is the molality of the solution? एकदम simple सा मैं direct formula. First of all, write down what it is. Delta TB. ठीक है? This given is delta TB. KB is given and molality is asked. Which formula you are going to use? Delta T Okay, B Rushu, you do, is हाँ, equal correct. to Rushu, you do one thing. You leave and then again rejoin. ठीक है? आपको network issue हो रहा है ना? You leave the meeting and again rejoin. Yes, correct. Who has given the answer? Delta TB is equals to KB into M. चलो फटाफट solve करो. Simple है, सब दिया हुआ है. 1.76 is equals to 3.07 into M. So M is equals to 1.76 divided by 3.07. मैंने आपको क्या सिखाया था? Always make the numerator greater than denominator. So make it 17.6 into 10 raised to -1 divided by 3.07. log से करो हाँ प्लीज, डायरेक्ट सॉल्व मत करो. समझा सबको ये सम? बट इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला. आई होप एवरीवन इज गेटिंग अंडरस्टूड दिस सम बच्चों. yes ma'am. ओके ठीक है, लॉग से करो. मैं लॉग के वैल्यूज पूछने वाली हूँ. 17.6 का लॉग कितना है? 3.07 का लॉग कितना है? लॉग आता है ना अभी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 17.6 निकालो माइनस इसका कितना आएगा? 1 पॉइंट, इसका 0 पॉइंट. 17 में 6 देखो, 30 में 7 देखो, इंटू 10 रेज़ टू -1 वैसे ही रखो. टेल मी योर आंसर्स होने के बाद. आई विल म्यूट माई सेल्फ. हाँ
हाँ आंसर बताओ ना प्लीज, किसका आंसर आ गया? कन्हैया बोलो आंसर, प्राइवेट में लिखो लेकिन, जो तो सब लोग देख के वही कॉपी करके मुझे बता देंगे। क्या आंसर आया? ये मेरा बुक किधर गया? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। मेरा ही बुक मिल गया किधर पे। कितना आंसर है कन्हैया का? करेक्ट, बराबर है कन्हैया, योर आंसर इज करेक्ट। यस, यश का आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सृष्टि करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? लॉक से सॉल्व किया ना कि कैलसी पे कर दिया धड़ाधड़? ओके ठीक है, चलो करो जल्दी बच्चों, इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट करो। Done everyone? Should I tell you the answer? Answer is 0.5733 मोलाल। तो यहाँ पे यूनिट सिर्फ डालेंगे, या फिर you can write down 0.5733 मोलाल। Everybody got this? Yes or no? ठीक है, चलो अभी दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो। पहला क्वेश्चन बोलूं? There are two questions for homework. Tomorrow I will check. मतलब whenever your lecture will be there, I will check. लिखो question. First question. The concentration of solute is expressed in molality. The concentration of solute is expressed in molality rather than molarity. Explain. ठीक है, आंसर मैंने बताया आपको, बट यू शुड राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर। वापस बोलती हूँ, हाँ हाँ, आई विल रिपीट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, the concentration of solute is expressed in molality rather than molarity. Explain. ठीक है, this is the question for 2 marks. अभी एक और question लिखो for numerical, हाँ, only one question. If you are able to solve, it is well and good, otherwise we will discuss it. बोलू? A 5% aqueous solution, 5% aqueous solution by mass of cane sugar, what is the formula for cane sugar? C12H22O11, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो मोलार मास इज इक्वल्स टू 342 grams per mole. A 5% aqueous solution by mass, yes, I will repeat. A 5% solution, sorry, a 5% aqueous solution by mass of cane sugar, a 5% aqueous solution by mass of cane sugar in bracket 342, ये मोलार मास है, 342 grams per mole has freezing point 271 Kelvin, has freezing point 271 Kelvin, has freezing point 271 Kelvin, full stop. Calculate the freezing point of, calculate the freezing point of
5%, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट इजी है. 5% aqueous ग्लूकोज सोल्यूशन. इसको इक्वेट करके सॉल्व करना है, मैंने हिंट भी दे दिया. ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन. केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. ठीक है, आई हैड गिवन यू हिंट ऑल्सो. दोनों को कंपेयर करना है, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का. दिस इज फॉर केन शुगर. केन शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुक्रोज. दिस इज अ कॉमन टेबल शुगर विच वी आर ईटिंग. ठीक है. These are the two questions which you have to solve. Any questions till now? I hope it is very very clear. चलो अभी सब लोग chat box में आ जाओ. I will ask some questions. Ready? 5 minutes are left. I cannot teach you the next part, so I will just ask some questions. Ready for the chat box? चलो. First question. What is boiling point? What is boiling point? What is boiling point? हैं सब लोग के चले गए भाई. हाँ, correct. Correct, प्रियंका. You can write your answers in short. हाँ, कोई problem नहीं है, ऐसे लंबा चौड़ा मत टाइप करो. Okay, correct. रुचिता. संचिता, correct. Very good. When the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है. Okay. What KB is called? What is KB? What is KB? What is KB? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे ना तो ज्यादा बेटर है. वो तो सिर्फ मैथमेटिकली है. जो मेन है उसका वो नाम लिखो. डोंट राइट डाउन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. हाँ, करेक्ट. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, करेक्ट. एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी एंड केएफ? What is the unit of KB and KF? What is the unit? हाँ, बराबर बराबर, करेक्ट करेक्ट. रुचिता बराबर आंसर है. बॉयज क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? बॉयज सब चले गए क्या? ओनली गर्ल्स आर आंसरिंग. हाँ, सिद्धेश आ गया. ओके, कम ऑन, एवरीवन हैज टू आंसर. हाँ, अथर्व, what is the unit for KB and KF? हाँ, बराबर, करेक्ट. Okay. Now the last question for the day. क्या पूछूं? Define molality. चलो, molality बताओ क्या रहता है, इतना ही बताओ. What is molality? शॉर्ट में बताओ. What is molality? You can unmute and also answer, no problem. टाइप करने को नहीं होएगा इतना सारा. हाँ, करेक्ट दिवेश, परफेक्ट आंसर. प्रियंका, मास बाय मास वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इट इज नॉट अ डेफिनेशन. यस कन्हैया, परफेक्ट आंसर. पर मास कितने में होना चाहिए? वेरी गुड कशिश. करेक्ट प्रणीता, बराबर है. सिद्धेश, करेक्ट. प्रियंका, चेक करो आंसर. ठीक है. आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट टाइम वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, और मैं आपको ना ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगी. ऑस्मोसिस ऑलरेडी आपने बायो में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आई विल टेक दैट एंड आई विल शो यू सम वीडियोज. ठीक है, कुछ डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, you can ask, no problem. ठीक है, thank you so much for sitting nicely for the lecture. Welcome. ठीक है, take care everyone. Okay, bye bye. Sir please end कर दीजिए, चलेगा मीटिंग.
बाय मिस। बाय बाय। वेलकम। बाय बाय। वेलकम संचिता। चलो मैं लीव करती हूँ, ठीक है, बाय सर।